Hi everyone, welcome to the channel. My name is Gaurav and in this video we are going to talk about some very popular B-School interview myths and I'll help you bust some of them. Okay, so without any delay, let's dive in and see what these myths are all about. Okay, so before we begin, I'd like to talk about some important points to keep in mind. The GDPI process, especially the personal interview ones, they are very subjective processes. Every single person's experience with different institutes or different kind of panelists at different stages in their career is going to be very different. Okay, so out of the thousands of interviews which happen every year, very few make it out on social media on platforms like Pagal Guy or Quora or Inside IM or whatever you name it, we have it. तो ऐसी चीजों में what is important to keep in mind is to not generalize any kind of experiences. ठीक है? Still, what I am going to try to do is here is कि कुछ कुछ things that I have figured out over the past few years कि अच्छा ये myths में लोग शायद अटक जाते हैं because nobody pointed out the reality to them, especially very much applicable to freshers, people who are right now in college and going for the B school interviews. उन लोगों के लिए खास करके काफी important है. And the gyan, the points that I'm going to discuss over here in this video is specifically keeping in mind tier 1 and tier 2 colleges. Some of the things that I'm going to talking about or maybe tell you कि ऐसा करो या ऐसा मत करो, maybe that won't be applicable to tier 3 colleges or maybe even lower than that, but tier 1 tier 2 में I think the advice is going to be fairly sound enough. ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं. Coming to myth number 1. Okay, GK and current affairs. Now the thing is that a lot of people end up confusing the two things with each other. What we have to keep in mind is current affairs अलग होता है, GK अलग होता है. In GK, what we are talking about is static GK. Okay, I'm not talking about dynamic GK. Static general knowledge. For example, how many world's top 10 जो 10 tallest peaks है, उनमें how many are in the Himalayas? What? I know that Mount Everest is the tallest peak. ठीक है, अब वो बिस्वा कल्याण दत्त का था ना एक वीडियो, कई सालों पुराना है वो एक्चुअली, वेरी ही सेइंग कि जनरल नॉलेज ये होता है कि भाई एवरेस्ट है. ओके, व्हाट इज दिस ऑब्सेशन ऑफ पीपल रिमेंबरिंग इट्स हाइट इज 8800 समथिंग मीटर्स. जनरल नॉलेज इज एवरेस्ट एग्जिस्ट करता है, काम खत्म. ओके, सो एक्चुअली द थिंग इज दैट कि पॉइंट्स लाइक दिस आ जाते हैं ये सब स्टैटिक जीके के अंदर. ओके, एंड करंट अफेयर्स, बट नेचुरली द टर्म स्पीक्स फॉर इटसेल्फ कि इन दिनों क्या चल रहा है या रीसेंट पास्ट में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए. ओके, सो इनके अंदर फाइन डिस्टिंक्शन करना क्यों जरूरी है? बिकॉज करंट अफेयर्स व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंटरव्यूज दे आर इंपॉर्टेंट, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट और अदर व्हाट इज नॉट इंपॉर्टेंट इज स्टैटिक जीके. एंड ये बात ध्यान में रखना इसलिए जरूरी है बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम्स आई हैव सीन फ्रेशर्स कमिट दिस मिस्टेक कि भाई they'll get some kind of irrelevant static GK material from somewhere. Maybe some institutes have combined this standard GK compendium जिसके अंदर बहुत सारे वेग डिटेल्स भरे हुए हैं, वेग सारा ज्ञान भरा हुआ है, एंड बच्चे बैठे हैं बेचारे, मेमोराइजिंग चल रहा है. लास्ट ईयर आई रिमेंबर देयर वाज दिस गाय हु वाज मेमोराइजिंग द 10 longest rivers in the world. I was like, dude, why in God's name for a B school interview would you want to memorize रिवर्स का लेंथ और व्हाट आर द 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड? क्या करना है ये चीजों का? सर पूछ लिया तो इंटरव्यू में. ओके, रियली एब्सोल्युटली नो लॉजिक पॉसिबल इन सच केसेस. तो ऐसी गलती आपने नहीं करना है. ओके, सो कीप इन माइंड कि करंट अफेयर्स, इंपॉर्टेंट इवेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड इन द कंट्री जो पिछले करीब 10-12 महीने में हो चुके हैं. फॉर एग्जाम्पल विद रिस्पेक्ट टू इंडिया, इंडिया ने G20 प्रेसिडेंसी एकदम सक्सेसफुली हैंडल की इन 2023 एंड इट हैज नाउ पास्ड ऑन द बटन. अभी हाल ही में अगर वर्ल्ड लेवल पे हम डिस्कस करें तो वी हैव जनरल इलेक्शंस कमिंग अप इन इंडिया in 2024 as well as in the US there is presidential elections. Recent past में और बात करें तो there is the Israel-Hamas war which is a very serious issue going on. ठीक है, but static GK is something not important. ठीक है, अगर आपको नहीं पता दुनिया की 10 लॉन्गेस्ट रिवर या रशिया की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, चलता है बॉस. ओके, डोंट वरी एट ऑल. व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग गोइंग इनटू इंटरव्यूज? क्या पता होना चाहिए आपको? आपके एकेड्स और आपका वर्क एक्सपीरियंस इफ इट इज एप्लीकेबल. ओके, फॉर एग्जांपल देयर आई कैन सी पीपल समटाइम्स, स्पेशली वंस अगेन फ्रेशर्स, जो खुद की पढ़ाई के ऊपर, उनके ग्रेजुएशन के पार्ट के ऊपर में दे डोंट हैव वेरी स्ट्रांग ग्रिप ऑन देयर कोर सब्जेक्ट्स,
but they are focusing on studying for current affairs, studying for static GK. Please keep in mind these are secondary. What comes primary is this. Okay. Most of the interviews में what the panelist is going to do is वो आपकी फाइल लेते हैं. फाइल in the sense you are expected to carry a graduation mark sheets, आपका 10th-12th का mark sheets with you and they will go through it. ठीक है कि आपको क्या सब्जेक्ट्स थे, कौन से ईयर में था, थर्ड ईयर में क्या सब्जेक्ट था, अगर 4 साल की डिग्री है तो फोर्थ ईयर में आप क्या पढ़ रहे हो अभी. they'll take a look at your score, they'll take a look at your CGPA percentage, so on so forth. बैकलॉग लगे थे क्या कहीं पे, ये सारी बातें बहुत ज़्यादा मैटर करती है. And why so? Because at its core, fundamentally, an MBA is an academic course. Okay, तो but naturally academic पे focus रहना ही रहना है. And academic course meant for people fundamentally जिनके पास में कुछ work-ex है, जिन्होंने कुछ काम कर लिया है in some standard corporate setup. They are now looking to do an MBA for 10 different reasons out there. और इस चीज के ऊपर में आपको appropriately judge किया जाता है. ठीक है. Okay, it's important to be aware of what is going on in the world. I am not saying कि बंद ही कर दो. Rather, how can you create a very good distinction is, जो भी आप अपना preparation का आपने एक टाइम टेबल बनाया होगा, every day that I'll study so and so for my CAT, so and so for current affairs and all. What you could do is go for a split of 2:1. In the sense that maybe if you devote 2 hours to studying or catching up with your CATs and then maybe 1 hour in catching up with current affairs. ठीक है. और इसके अंदर में भी फॉर करंट अफेयर वन ऑफ द फाइनेस्ट वेज, ओल्ड स्कूल तरीका बिल्कुल काम करने का ऐसा होता है कि आप सिर्फ मगिंग मत करो. यू गो टू विकिपीडिया पेज, पढ़ रहे हो ढेर सारे डिटेल में एक एक आइटम अच्छे से, दैट इज गोइंग टू लीड डाउन टू अ लॉट ऑफ रैबिट होल. तो ऐसे केस में व्हाट यू शुड डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल एक मेगा लिस्ट बना लो. फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग विद टॉपिक्स लाइक इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी व्हिच वेंट बाय, इजराइल हमास वॉर, सो ऑन सो फोर्थ. इनका एक कंपेंडियम बना के जो भी आपके साथ में डिफरेंट बहुत सारे सोर्सेस है, यू विल गेट कंपेंडियम्स फ्रॉम द अलग अलग इंस्टीट्यूट्स, यू विल हैव विकिपीडिया, यू विल हैव अदर ब्लॉग्स, यू हैव न्यूज़पेपर्स, व्हाट नॉट. तो उनको पढ़ने के बाद में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, व्हाट यू कुड डू इज मेक अ डायरी, मेक अ रजिस्टर ऑफ सॉर्ट्स. ओके. और ये जो करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, टू ईच टॉपिक आई थिंक यू शुड मेक हैंड रिटन नोट्स ऑफ 2 pages ईच. बहुत सारा ज्ञान बैठ जाएगा 2 pages में. सुनने में शायद कुछ लोगों को ट्रिवियल भी लग रहा होगा, बट कीप इन माइंड आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छे बड़े रजिस्टर के 2 pages. बुलेट पॉइंट्स में आप लिखते चलिए इंपॉर्टेंट बातें, मे बी अ पैराग्राफ हियर एंड देयर, एंड विल बी अमेज्ड एट हाउ मच इंफॉर्मेशन कैन बी कंप्रेस्ड इनटू 2 solid pages ऑफ एनी रजिस्टर. ठीक है. एंड इट विल हेल्प यू कैच अप बहुत क्विकली जस्ट बिफोर योर पर्सनल इंटरव्यूज. एंड जितने आप बिखरे रहोगे उतना आपका प्रिपरेशन बिखरा रहेगा, उतने आपके आंसर्स भी बिखर सकते हैं. व्हाट वी आर लुकिंग फॉर इन द पर्सनल इंटरव्यूज, व्हाट एवरी पैनलिस्ट ड्रीम्स अबाउट इज कि यार मेरे सामने जो बंदा है या बंदी है, उसको मैं जो सवाल पूछूं इसने कंसाइज जवाब देना चाहिए. ओके. थोड़ा सा पैनलिस्ट के नजर से आपको काम करना है. उस इंसान को दिन में 15-20 इंटरव्यूज लेने हैं मिनिमम. तो आप उनका जितना कम समय खराब करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है. एंड हाउ डज इट स्टार्ट? तो जस्ट लाइक द सेइंग गोस, चैरिटी बिगिंस एट होम. तो उनका समय खराब ना हो तो उसके पहले आप अपना समय खराब मत कीजिए. मेक अ प्रिटी फोकस्ड प्रॉपर स्ट्रैटेजी लाइक दिस. ठीक है. स्टैटिक जीके के पीछे मत दौड़िए, करंट अफेयर्स और अकैड्स के ऊपर में फोकस रहना चाहिए आपका. एंड द स्प्लिट दैट आई बिलीव व्हिच इज वेरी हेल्दी इज 2:1. ठीक है. तो अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपके मन में वो डाउट नहीं चलना चाहिए, अरे आई शुड बी स्टडीइंग फॉर माय अकैड्स, ये नहीं पूछा तो क्या. या फिर व्हेन यू आर स्टडीइंग फॉर अकैड्स देयर विल बी अनदर नॉइज गोइंग ऑन इन योर हेड व्हिच सेज कि अरे नहीं आज का न्यूज़पेपर तो बच गया है पढ़ना. तो डू जस्टिस टू बोथ द थिंग्स इन दिस रेशियो एंड आई बिलीव दैट यू विल बी बेटर ऑफ देन मोस्ट. ठीक है. तो चलो, आई होप दैट यू गॉट दिस पॉइंट. लेट्स मूव टू द सेकंड वन, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. ठीक है. अभी मैं जो बोलने आ रहा हूँ ये दिस कैन रफल अ लॉट ऑफ फेदर्स एक्चुअली. ठीक है. सो वेदर यू अग्री विथ मी और नॉट, माय जॉब इज जस्ट टू ले आउट द फैक्ट्स बिफोर यू एज आई हैव एक्सपीरियंस्ड देम. देखिए वेदर इट वर्क्स फॉर यू और नॉट. तो सबसे पहले आता है कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन योर प्रोफाइल, थिंग्स लाइक हैविंग पार्टिसिपेटेड इन सम कॉलेज के फेस्ट, कॉलेज के एक्टिविटीज, maybe you have played any kind of sport at the state level, at the national level, maybe even international level. ठीक है. तो ये सारी बातें they are an add-on to your profile and not a necessity. ठीक है.
As I mentioned just a few minutes ago, an MBA program is fundamentally an academic program for people with work experience. ठीक है, तो कीपिंग दैट इन माइंड, अगर आपके पास में कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी होती है तो इट इज गुड, बट नो वेयर शुड यू बी थिंकिंग कि अरे मेरे प्रोफाइल में तो कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर है ही नहीं. ठीक है, ऐसा आपने बिल्कुल सोचना नहीं चाहिए. Occasionally, every year I get 1 or 2 students like this who have this kind of self doubt creeping in their mind every time कि सर हमारे प्रोफाइल में तो कुछ है ही नहीं, हम फॉर्म भर रहे हैं. तो दे गेट वेरी कॉन्शियस वेल व्हेन दे हैव टू लीव द फॉर्म में एक्स्ट्रा करिकुलर वाला पार्ट. लीव इन द सेंस, इन सम टीयर 1 टीयर 2 कॉलेजेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड होता है कि आपने स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पे कुछ किया है वही लिखना है. कॉलेज लेवल स्कूल लेवल पे कुछ भी काम किए होंगे तो प्लीज वो मत लिखो. तो ऐसे केस में ऑफ कोर्स बहुत सारे लोगों का वहां पे ब्लैंक जाने वाला है, एंड इट इज ओके. ठीक है, उस चीज के बारे में आपको कॉन्शियस नहीं होना है. उस चीज के बारे में यू शुड नॉट पैनिक और स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योरसेल्फ एज इंफीरियर. Anyway, it is in the past and there is literally no way that you can get into some extracurricular activity now and so that it goes into your profile, so that it goes on the form just for the sake of it. Please don't do that. ठीक है. On the other side of the spectrum, on the opposite end, are people जिन्होंने काफी अच्छे लेवल पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की है कुछ ना कुछ. तो उन लोगों के लिए मेरी सलाह रहेगी, प्लीज डू नॉट ड्रम देम अप इन द सेंस दैट एवरी ईयर देयर इज गोइंग टू बी दिस 1 or 2 गाइस जो सोचते हैं कि हम इंटरव्यू पलटा लेंगे इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में. हमारे प्रोफाइल में XYZ ये एक्टिविटी बहुत अनकॉमन है. वी आर वेरी कॉन्फिडेंट कि हमने जो इसमें लेवल अचीव की है, हार्डली एनीवन हैज डन दैट. ओके, वेरी अप्रिशिएबल, वेरी गुड गोइंग. नोबडी इज डाउटिंग योर कैपेबिलिटीज इन दोस फील्ड्स. बट एक बात आपको कॉन्शियसली ध्यान में रखना जरूरी है कि जितनी महान वो चीज आपके नजर में है, नॉट नेसेसरी आपके पैनलिस्ट के नजर में होगी. पैनलिस्ट जब आपके इंटरव्यू लेने बैठते हैं तो उनका खुद का एजेंडा फिक्स होता है. यू कैन नॉट ड्रीम ऑफ हैविंग अ सिचुएशन वेयर यू आर स्टीयरिंग द इंटरव्यू. ओकेजनली इट हैपेंस, बट इफ यू लुक एट इट इन परसेंटेज टर्म्स, बहुत नहीं के बराबर है. मे बी 1 in 500 इंटरव्यूज वेयर द पैनलिस्ट इज इन थोड़ा सा लीनियंट मोड, थोड़ा सा इंडल्ज करने के मूड में है एस्पायरेंट को, तब भले ही बात हो सकती है इसी. बट प्लीज इन रूमर्स में, इस हियर से में आपको बहकर नहीं जाना है. वेरिन यू रीड एन इंटरव्यू, वेरिन यू हियर अबाउट एन इंटरव्यू एंड यू आर अमेज्ड, अरे वाह भाई क्या पलटा दिया इंटरव्यू तूने तो अपने फायदे में. ऐसा नहीं होता. ठीक है, मोस्ट ऑफ द इंटरव्यूज आर वेरी ओल्ड स्कूल, वेरी बोरिंग इन द सेंस कि पैनलिस्ट इज आस्किंग यू टेक्निकल क्वेश्चंस रिगार्डिंग योर CAT, रिगार्डिंग योर वर्क or maybe any other thing, and the aspirant is simply answering them. Sometimes they are failing, sometimes they are succeeding in answering. End of story. Okay, हीरोपंती वाले एक्सपीरियंसेस में आपको बह के नहीं जाना है. खास करके अगर आपके पास में बहुत अच्छा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है, वर्क देम इनटू योर आंसर्स. फॉर एग्जांपल, इफ यू आर प्रिपेयरिंग टेल मी अबाउट योरसेल्फ वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो डेफिनेटली उसके अंदर हैव अ सेंटेंस और 2 व्हिच इज टॉकिंग अबाउट दिस अचीवमेंट ऑफ योर्स. नोवेयर एम आई सेइंग कि आपने इसका जिक्र भी नहीं करना है, ऐसा नहीं है. आपके पास में करिकुलर अचीवमेंट है, बिल्कुल आपको बात कीजिए. अगर एक्स्ट्रा करिकुलर जेन्युइनली कुछ बहुत अच्छे लेवल का है तो उसमें भी आपको बात करना है. लेकिन प्लीज डू नॉट हैव डिल्यूजन्स, हैव फैंटेसीज ऑफ हैविंग द एंटायर इंटरव्यू सर्कुलेट अराउंड इट. ठीक है, ऐसा नहीं होगा. ओके, तो व्हाट शुड यू डू? तो ऐसे स्टेज पे आप ध्यान में रखिए कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के अगर आपके पास में कुछ अचीवमेंट्स है तो दे आर रियली गुड. You should talk about them in your strengths and weaknesses. Maybe you should talk about them in your tell me about yourself wala part. You can also talk about those as having taught you pretty important stuff. कि पर्सनालिटी में मेरे एकेडमिक्स के अलावा ये एक्सपीरियंस ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इन शेपिंग मी. Now, what I'm going to say is going to pinch, is going to hurt a lot of you guys out there possibly. लेकिन एक बात जो मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि आपके कॉलेज फेस्ट वाला जो एक्सपीरियंस है, प्लीज उसको ज्यादा उछालिए मत. ओके, ये इतना क्लीशे, ये इतना रगड़ के निचोड़ कर खराब कर दिया गया है ये वाला पार्ट कि हार्डली एनी इंटरव्यू पैनलिस्ट इज इंटरेस्टेड इन लिसनिंग टू आंसर्स व्हिच रिवॉल्व अराउंड कॉलेज फेस्ट. You held some kind of administrative position, some kind of coordinator or head of blah blah activity in your college fest. No matter how large it might have been, 5,000 people, 10,000 people might have attended it, but it seriously does not carry much water with the interview panelist. ठीक है,
आप इनका एक कर्सरी मेंशन कर सकते हो, बट डू नॉट एक्सपेक्ट दैट द पैनलिस्ट विल बी एनामर्ड बाय इट। अरे वाह भाई, आप तो हेड थे आपके कॉलेज टेक फेस्ट के, वाह जी वाह, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, नॉट हैपनिंग। ओके। अभी थोड़ा सा मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल देना चाहूंगा विच आई हैव पर्सनली सीन विथ माय वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आल्सो आई हैव बीन सीइंग इट फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स विथ रिस्पेक्ट टू मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, तो ये पार्ट स्पेसिफिकली मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एप्लीकेबल है, बट others can also derive a lesson from it. Now, in the Mac production domain, what we have is a very reputed competition by the name of Baha. ओके, इफ यू आर एन इंजीनियर तो आपने कहीं ना कहीं इस एक्टिविटी के बारे में सुना होगा। इट इज अ कंपटीशन नेशनल लेवल वेर इन स्टूडेंट्स, हर कॉलेज की जो जो एक टीम होती है वो एक गाड़ी बनाते हैं, उस गाड़ी को बनाने के बाद में दे ऑल्सो रेस इट, बाहा होता है, देन यू ऑल्सो हैव सुपरा, फॉर्मूला वन एंड व्हाट नॉट, व्हाट एल्स, एवरीथिंग। ठीक है, तो ये एक्टिविटीज में गाड़ी बनानी पड़ती है एक्चुअली, विच इज अ वेरी डिमांडिंग टास्क, एक प्रॉपर टीम वर्क का काम है, और उसके बाद में नेशनल लेवल पे कंपटीशन होता है विच इज वेरी रिग्रेस एंड सच। तो वेरी अप्रिशिएबल, एब्सोल्युटली नो डाउट इन दैट। बट द थिंग इज कि while this might be a pretty reputed thing in mechanical or in the automobile circles, in your IIM interviews or in your B school interviews, these won't seriously capture the imagination, capture the attention of your interview panelist. आपको ये ध्यान में रखना है। और एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता सकता हूँ, वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन, वो इसी फील्ड में, बाहा वाले एरेना में, he has gone to US for a couple of times, which is an amazing part to go on the profile, which is an amazing part of his resume. ठीक है, along with graduating from a really reputed college in the country, he has also represented the college not once but twice, that too in the USA, which is very remarkable. Okay, and he used to mention this in all his in all his B school interviews. Okay, but the thing was कि कहीं कहीं पे it was very obvious that the panelist was shooting him down whenever he tried to talk in detail about this activity. Okay, so even with such a remarkable achievement, if the panelist is not interested in listening to your प्रवचन, तो आप वो ड्रीम मत रखिए कि आप वो चीज के बारे में बात कर करके इम्प्रेस करेंगे पैनलिस्ट को। ठीक है, so that is a very inconvenient myth that I am bursting in your minds if you are watching this and if this is applicable to you. I am really sorry for that if this hurts you, but please don't do it. ठीक है, तो फोकस कीजिए अपने एकेडमिक के ऊपर, फोकस कीजिए अपने वर्क एक्स पे, एंड have it in your mind कि yes, I'll talk about my extracurricular, but I'll delve deeper into it only if the panelist expresses an additional interest. ठीक है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ में अगर हम समझ लीजिए 7-8 sentences का आंसर बना रहे हैं, you cannot have a situation where this extracurricular activity is hogging 4 sentences of it. Absolutely not cool. Okay, maybe one sentence where you are giving your tangible achievement in there properly, call it the end. ठीक है, तो with this in mind, once again I'll repeat, mention your extracurricular activity, आपका achievement in your answers, but do not expect the panelists to interview you only around those. One or two glorious interviews you might come across here and there जहाँ पे honestly उसी के अराउंड चला, अकेड्स के बारे में कुछ पूछा नहीं गया, but there can be 100 reasons for that happening. One of them being it is possible that a panelist knows कि बंदे का अकेड बहुत अच्छा है, इसके ऊपर जाने दो, पूछ के मतलब नहीं है, the mark sheets themselves speak for the candidate. होता है ऐसे भी। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। Coming to the last point now, and this is something pretty tricky. Each question needs to be answered. ऐसा नहीं है। Okay, इसको लेकर मैंने एक कोट बनाया है which is inspired from Animal Farm actually. ठीक है, तो आई होप आपने आपके कैट प्रेप के दौरान शायद 1984 नहीं 1984 जाने दीजिए, वो ज्यादा ही डार्क है, एनिमल शायद आपने, एनिमल फार्म शायद आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एनिमल मूवी का जमाना है और मैं एनिमल फार्म की बात कर रहा हूँ। वाह जी वाह, क्या बात है। ठीक है, तो ऑल क्वेश्चंस आर बॉर्न इक्वल, सम आर मोर इक्वल देन अदर्स, इन द सेंस कि डू नॉट हैव दिस डिल्यूजन कि पैनलिस्ट आपको जो पूछेगा लिटरली आपको सब कुछ आना चाहिए। For example, I'll give you a very real life example. I am Kozhikode का इंटरव्यू, one of my best candidates last year, उसे क्या पूछा गया देखिए, what is the capital of? अच्छा चलो, कैपिटल तो आना चाहिए आपको, अगर मैं महाराष्ट्र का पूछूं, मध्य प्रदेश का पूछूं, इंडिया के कोई भी स्टेट का पूछूं, आना चाहिए, बिल्कुल अच्छी बात है। क्या पूछा गया भाई से? उसे पूछा गया व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया। ओके, नाउ इफ यू आर नॉट रॉन्ग, दिस इज अ कंट्री नियर रशिया। This is also, I think, if I'm not wrong, this is also the name of a state in US. Okay, I'm not sure as of this moment. और
after the candidate said कि sir I am afraid I don't know the answer to this, who in God's name knows the capital of Georgia यार, ठीक है। तो उसके बाद में immediate follow up question होता है, what is the capital of Turkey? This is where our hero fell in the trap and he ended up answering Istanbul. तो इस्तांबुल भले ही बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है टर्की की, बट इट इज नॉट द कैपिटल, अंकारा इज द कैपिटल। तो नाउ यू हैव टू सिट डाउन एंड वंडर कि ये सवाल का क्या लेन देन है आपके IIM कोझिकोड एप्लीकेशन को लेके। ओके, लाइक रियली नोइंग द कैपिटल ऑफ एन ऑब्सक्योर कंट्री लाइक जॉर्जिया, इज इट रियली द मार्क ऑफ अ गुड एस्पायरेंट? एब्सोल्युटली नॉट। फिर क्यों पूछा गया ये क्वेश्चन? तो इट वाज आस्क्ड बिकॉज the panelist in such cases wants to check your temperament, कि if he or she throws a very inconvenient question along your way, तो आपका body language कैसा होता है, आपके चेहरे के expression बदलते हैं क्या, do you get worried, do you get tensed, क्या आपकी body language goes from being calm like this to going like this एकदम से, नहीं सर नहीं पता, नहीं प्लीज नहीं, एकदम चेहरे पे अगर टेंशन आ गया आपके, तो ये सारी बातें गलत है। ओके, बिकॉज एमबीए इज अ प्रीटी डिमांडिंग कोर्स, आगे भी जो आप लाइफ चूज कर रहे हो आपके लिए इट इज गोइंग टू बी प्रीटी डिमांडिंग इन अ लॉट ऑफ एस्पेक्ट्स। सो इफ अ क्वेश्चन लाइक कैपिटल ऑफ जॉर्जिया एंड्स अप स्ट्रेसिंग यू आउट, तो कहीं ना कहीं दैट स्पीक्स अबाउट योर कैपेसिटी, अबाउट योर कैपेबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। ठीक है, ऑफ कोर्स आई नो इंटरव्यूज आर प्रीटी इंपॉर्टेंट, एवरीवन इज कहीं ना कहीं अंदर से थोड़ा तो स्ट्रेस्ड आउट होते ही है, बट दिस इज वेयर अ गुड कैंडिडेट शाइन्स अमंग प्रीटी मीडियोकर वंस, कि अगर आपको ऐसे सवाल आउट ऑफ द ब्लू पूछे गए तो यू नीड टू बी अवेयर इन दैट मोमेंट कि द पैनलिस्ट इज प्रोबेबली एक तो मेसिंग अराउंड विथ यू, या फिर दे आर लुकिंग नॉट फॉर द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया बट लुकिंग फॉर समथिंग एल्स फ्रॉम यू। ठीक है, तो ये ऐसी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखना जरूरी होता है। Another thing, sometimes just for the sake of it, just for the sake of checking your temperament, the panelist can sometimes ask you very inconvenient things. For example, एक चीज के ऊपर जनरल कॉन्सेंसस हम कह सकते हैं, लास्ट ईयर इंडिया ने जो G20 प्रेसिडेंसी हैंडल किया, इट वाज अ रियली गुड सक्सेसफुल इवेंट, एवरीथिंग वेंट ऑन स्मूथली, नो एडमिनिस्ट्रेटिव हिकअप्स, नथिंग एंड इन जनरल द कॉन्सेंसस वाज दैट इट वाज अ वेरी सक्सेसफुल होस्टिंग। चलो अच्छी बात है। Imagine the panelist, after having discussed XYZ with you, towards the end of the interview, who throws this question before you कि बॉस, इंडिया ने लास्ट ईयर जो G20 प्रेसिडेंसी हैंडल किया, जो होस्ट किया, ऑल ऑफ दैट ये सब बकवास है, ऑल ऑफ दिस इज बुलशिट। नाउ नॉट रियली यूजिंग द टर्म बुलशिट, बट इन द सेंस अ बिग वेस्ट ऑफ पब्लिक मनी, कि क्या भाई आप इतने बड़े बड़े डेलीगेट टीम्स को आप पूरा इंडिया घुमा रहे हो, यू आर मेकिंग देम स्टे इन एक्सपेंसिव होटल्स, आप उनका एंटरटेनमेंट में इतना पैसा खर्च कर रहे हो, व्हाट इज ऑल दिस हैपनिंग, सब गलत बात है, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था गवर्नमेंट ने। इमेजिन द पैनलिस्ट इज टेलिंग यू दिस एंड ही देन टेल्स यू कि व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस। तो वंस अगेन इन सिचुएशंस लाइक दिस आपको ये बात ध्यान में रखना है कि इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट नीड्स टू बी आंसर्ड, या फिर इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू शुड अग्री विद द पैनलिस्ट। ओके, ऑफ कोर्स दिस इज अ वेरी अनकन्वेंशनल ओपिनियन कि इंडिया का G20 प्रेसिडेंसी वाज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, हम एज आम जनता, कॉमन सिटीजन ये बात जानते हैं कि हाँ जी इंडिया ने होस्ट किया, सक्सेसफुली किया, एंड अपेरेंटली इट लुक्स लाइक अ गुड सक्सेस। अभी अंदर की बातें क्या है इकोसिस्टम में, ऑफ कोर्स हम नहीं जानते। तो ऐसे केस में व्हाट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू इज कि you simply take a minute to answer, do not jump on the panelist ke comments like a hungry dog. Okay, simply take a pause and then maybe you smile at the panelist and say sir, I am sorry but I think I differ with you, I differ from this opinion of yours. सीधी सी बात है। ठीक है, आपको यहाँ पे एक डिबेट समझ के उनको काटना नहीं है, कह रहे नहीं सर आपकी तो ये बात बहुत गलत है, इंडिया ने तो ये अचीव किया, वो अचीव किया, ये किया, वो किया। डूड, एवरीबॉडी नोज इंडिया ने क्या अचीव किया। द पैनलिस्ट इज लुकिंग फॉर योर टेम्परामेंट इन दिस केस। अगर वो आपको पूछते हैं, इसके बाद में फॉलो अप क्वेश्चन होता है कि अच्छा आपको लगता है सक्सेसफुल था, बताइए ऐसा क्यों आप फील करते हैं, तो देन कम्स द टाइम टू ले आउट मे बी 1 2 3 4 सक्सेसफुल पॉइंट्स अबाउट this G20 presidency which India probably which India succeeded in. ठीक है, तो this is how you should move ahead in the interview. This is the important part that you should keep in mind. Not every question needs to be answered, not every contentious opinion of the panelist should be countered blatantly or directly. थोड़ा सा उस मोमेंट में सजगता रखिए, जागरूकता रखिए दिमाग में। ठीक है, तो चलो दिस वाज इट फ्रॉम माय एंड, राउंडिंग ऑफ द पॉइंट्स वंस अगेन। क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, ऑब्सेशन विद जीके मत रखिए।
Okay, current affairs, definitely read from newspapers, read from good sources, make your own notes, but static GK के ऊपर में पागल नहीं होना है आपको. The panelist is not hunting for a quiz master. Okay, secondly, please do not overplay your extracurricular achievement in the interview. Mention those at appropriate stages. If the panelist seems interested, प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड आंसर बनाइए कि आप उसके अंदर क्या बोलने वाले हैं. प्रवचन मत दीजिए लंबा चौड़ा. एंड थर्ड, डोंट गो इन विथ एन एक्सपेक्टेशन फ्रॉम योरसेल्फ कि मुझे तो हर क्वेश्चन का आंसर देना है. नॉट नेसेसरी. सम क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी ट्रैप. यू हैव टू बी अवेयर क्या ट्रैप है और कौन सा जेन्युइन क्वेश्चन है. ठीक है, दिस हैपेंस अ लिटिल बिट मोर विद गाइज रादर देन गर्ल्स. बॉयज के इंटरव्यूज बहुत सी बार ग्रिल वाले जोन में चले जाते हैं. I'll be making another video about it, how to handle stress interviews, how to handle questions which grill you. Stay tuned for that. I'll post it in the near future. If you like this content, thanks a lot for watching. Please hit the like, share and subscribe button. And before you go, as you can see on the screen right now, there is also this link flashing before you. I also conduct a GDPI prep program, which I have labeled as GDPI with Gaurav. You can check this video out. यहाँ पे on the top right there must be this card hovering before you. Okay, you can click on the video, you can watch it to get the details of the program. I've also put the Google form का link in the description box in case you are interested. You can enroll for the program and get in touch with me so that we can prepare for your B School interviews together and help you crack your best B School. Okay, till then, tada, bye bye, take care and all the best with your interviews. Bye.